वो प्रभु जी को वो करना पड़ेगा, अपने उस पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उसको फुल कर देते हैं, हाँ ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Very nice. Hare Krishna. So today we're gonna study from chapter number 18, fifth canto, chapter 18. Okay. So please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. यत संगलब्धं निज वीर्य वैभवम् यत संगलब्धं निज वीर्य वैभवम् तीर्थं मुहुसं स्पर्शतां हि मानसम् तीर्थं मुहुसं स्पर्शतां हि मानसम् हरति जो तश्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम् हरति जो तश्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्। Very nice. Word by word translation. Oh, sorry. Okay. वैसे आप देख सकते हैं ऊपर आप यूआरएल में देखेंगे, फिफ्थ कैंटो चैप्टर 18 वर्स नंबर 11. सॉरी 5 SP 5 18 11. 5 18 11. सॉरी मुझे ध्यान नहीं था. अच्छा ज्ञान माता की जय कर कर हाथ जोड़ के. You can see my screen, Narendra Prabhu, Kanu Mataji. Can you see my screen, or I'm not sharing my screen actually?
No, Prabhu, we can see that. Yeah. You can see my screen? Yes, Yes. Prabhu. Yes. आपको श्लोक दिख रहा है? हाँ हाँ, अच्छा ये अभी श्लोक अभी दिख रहा है अभी, हाँ. ओके, दिख रहा है आप लोगों को ना? यस प्रभु. 5, 18, 11 आगे चलिए के है ना? ओके, फिर से एक बार करें. आप लोग इतने अच्छे से बोलते हैं, बस आप थोड़ा और उसको ध्यान से सुनेंगे तो एकदम बिल्कुल वैसा आ जाएगा. Without even looking at it, you can close your eyes, you just hear, and then it will come out. Okay. यत संगलब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुसम स्पर्शताम हि मानसम हरति जो अंत श्रुतिभिर्गतोंगजम. ओके, स्लो करते हैं इसको. हरति जो अंत श्रुतिभिर्गतोंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम्. Very nice. What about our translation? Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Yat, of whom the devotees Sangalabdham, achieved by the association, Nijvirya Vaibhavam, whose influence is uncommon, Tirtham, holy places like the Ganges, Muhu, repeatedly, some Sparshatam, of those touching, he, certainly, Manasam, the dirty things in the mind, Harati, vanquishes, Aja, the supreme unborn one, Anta, in the core of the heart, Shrutibhir, by the ears, Gataha, entered, Angajam, dirty things or infections of the body, Ka, who, Vai, indeed, Na, not, Sevet, would serve, Mukund Vikramam, the glorious activities of Mukunda, the Supreme Personality of Godhead. Okay, nice. Translation by Srila Prabhupada ki. Please repeat. By associating with persons for whom the Supreme Personality of Godhead, Mukund, is all in all, one can hear of his powerful activities and soon come to understand them. The activities of Mukunda are so potent that simply by hearing of them, one immediately associates with the Lord. For a person who constantly and very eagerly hears narrations of the Lord's powerful activities, the absolute truth, the personality of Godhead
in the form of sound vibrations enters within his heart and cleanses it of all contamination. On the other hand, although bathing in the Ganges diminishes bodily contaminations and infections, this process and the process of visiting holy places can cleanse the heart only after a long time. Therefore, who is the sane man who will not associate with devotees to quickly perfect his life? तो आप समझे इसका मतलब? अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूं, अब इस श्लोक में कौन बोल रहे हैं? ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले वो भूमिका बना रहे हैं। भूमिका बना रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें आप भक्तों का संग दीजिए। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि भक्तों के संग की इतनी इंपॉर्टेंस है। वो कह रहे हैं तीर्थों की जगह पे हम लोग जाते हैं, वहां पे तीर्थों के प्लेस में आप जाते हैं, गंगा जी का जिसमें उदाहरण दिया गया है, गंगा जी में आप डुबकी लगाते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था गंगा स्नान में डिफरेंस क्या है। एक तो गंगा में जाकर सिर्फ शरीर को धोना है, एक गंगा जी में अपने मन को विलय कर देना है। समझे ना आप? शरीर को धोना मतलब कैसा? एक बॉटल बंद है, उसको पानी में डुबो दिया और बाहर निकाल के ले आए, तो बॉटल बंद की बंद रही, कुछ उसमें चेंज थोड़ी हुआ। तो हम लोग का स्नान वैसा ही है, हमारी बॉटल बंद ही रहती है ना। मन तो कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि मन खोला ही नहीं है भगवान के सामने। बस उसको चुपचाप लेके जाते हैं, जो भी मन के अंदर भरा हुआ है सब कुछ, बस डिमांड्स मांग लेते हैं, लेकिन भगवान के आने के लिए जगह नहीं है उसमें। उसमें डिमांड्स भरी हुई है, उसमें चिंताएं भरी हुई है, उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें भरी हुई है। भगवान कैसे आएंगे? यू हैव टू क्रिएट सम स्पेस। अब यहाँ कुछ रखने के लिए स्पीकर को हटाएंगे तभी यहाँ कुछ नई चीज आएगी। ऐसे हमारे हृदय में इतना सब कुछ भरा हुआ है। तो यहाँ भी बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान हमारे कानों के थ्रू डायरेक्ट हमारे हृदय में एंटर कर जाते हैं और हमारे हृदय को पूरा क्लीन कर देते हैं। एंड दैट क्लीनिंग, उस क्लीनिंग से क्या होता है? हम डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। वी गेट नेचुरल अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड। भगवान की तरफ अपने आप हमारा मन बढ़ने लगता है। अब जैसे आप लोग सब आए हो, सैटरडे था, आप कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं चलते हैं, भगवान की चर्चा होगी, कथा होगी। अभी कोई मुझे बता रहा था, हमारे कोई यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, वो मूव हो गए, कहीं दूसरे कंट्री में चले गए। अभी कुछ दिन पहले उनका फोन आया, हमारी मेरी पत्नी के पास, वो यही कह रही थी कि मैं मिस करती हूँ एसोसिएशन यहाँ की। जब यहाँ पे थे तो हमें इसकी वैल्यू रियलाइज नहीं होती, बट नाउ दे रियलाइज कि वो क्या मिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है सब कुछ, तो वी डोंट अप्रिशिएट। बट जो नहीं मिल रहा है, जब थोड़ा सा दूर जाएंगे तब हमें उसकी वो इम्पोर्टेंस पता लगेगी, है ना? तो इसीलिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कोई चांस लेना ही नहीं है। तो ये प्रहलाद महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह भगवान से, और वही कह रहे हैं यत संग लब्धम, मतलब भक्तों का संग ऐसा है। वो कह रहे हैं अगर हमें संग आपको देना है किसी का, संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु न, हे भगवान अगर संग किसी का करना है तो जिनको भगवान से प्यार है या जो भगवान के प्यारे हैं, बस उन्हीं का संग देना, बाकी किसी का संग मत देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतदार और संपदा पापिन के भी होए। सुतदार और संपदा पापिन के भी होए। और अगली लाइन क्या है? हरि कथा और संत मिलन तुलसी दुर्लभ दोए। वेरी नाइस, गुड। ठीक है ना? तो ये दो बहुत दुर्लभ हैं। बच्चे पैदा कर लिए, संपदा इकट्ठी कर ली, ये तो पापियों के पास भी हो जाते हैं। लेकिन जो संत मिलन और हरि कथा, ये दोनों बहुत दुर्लभ है ना? तो जब तक ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं।
ओके, अभी आपको श्लोक का मीनिंग समझ में आ गया? अभी कोई श्लोक रिसाइट करना चाहेगा? मे बी वन माता जी, वन प्रभु जी, ट्राई। ये भगवान की वाणी है, ये प्योरीफाई करती है हमारे हार्ट को, हमारे एनवायरमेंट को। you know, who wants to try? There is no hesitation, you can just try. पहले माता जी, कोई माता जी ट्राई करें, तब तक प्रभु जी को टाइम है, अब अपना प्रैक्टिस कर ले मन में। मुझे कैसे बोलना है। कोई बात नहीं, आप जैसे हम लोग बोलते हैं उस मीटर में नहीं बोल सकते, आप एक एक शब्द पढ़ के बोलिए, फिर अगली बार मीटर पे आ जाएगा। यस प्रभु, देवेंद्र प्रभु ट्राई करें। यस यत संग लब्धम निज वीर वैभव, यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम् मोहा संस्पृशताम हिमांशम, कीर्तं मुहुसं स्पर्शतां हि मानसम्। जो अंतर श्रुति दो अगजम, हराति जो अन्तश्रुतिभिर्गतों गजम्। को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। ये तो धीरे से बोले, बड़े आनंद से बोले। को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। देखिए, थोड़ा सा पॉज करके धीरे से बोले, बड़ा सुंदर लगेगा। ओके, कोई माता जी ट्राई करना चाहती है? ओके, यत संगलब्धमं निज वीर्य विरहम्, यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम् प्रकृतं हि मानसम्, तीर्थं मुहुसं स्पर्शतां हि मानसम्। हराति जो अन्तश्रुतिभिर्गतों गजम्। को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम्। Okay, very nice. Thank you very much. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please hear. Bathing in the Ganges can only certainly cure one of many infectious diseases, but it cannot cleanse one's materially attached mind, which creates all kinds of contaminations in material existence. However, one who directly associates with the Supreme Lord by hearing of his activities cleanses the dirt from his mind and very soon comes to Krishna consciousness. Sud Goswami confirms this in Srimad Bhagavatam. Shrinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridi Antastho Yabhatrani Vidhunoti Suhrad Sata. The Supreme Lord within everyone's heart becomes very pleased when a person hears narrations of his activities and he personally cleanses the dirt from the mind of the listener. Hridi Antastho Yabhatrani Vidhunoti. He washes off all dirt from the mind. Material existence is caused by dirty things within the mind. If one can cleanse his mind, he immediately comes to his original position of Krishna consciousness, and thus his life becomes successful. Therefore, all the great saints in the devotional line very strongly recommend the process of hearing. Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the congregation chanting of the Hare Krishna mantra to give everyone a chance to hear Krishna's holy name. For simply by hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one becomes purified. Cheto darpan marjana. जो चेतना का जो दर्पण है उसके सफाई हो जाती है। मार्जन कहते हैं झाड़ू लगाना, और चेत जो है चेतना का जो दर्पण है वो मार्जन हो जाता है। Therefore, our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting the Hare Krishna mantra all over the world. After one's mind becomes cleansed by chanting the Hare Krishna,
one gradually comes to the platform of Krishna consciousness and then reads books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and the Nectar of Devotion. In this way, one becomes more and more purified of material contamination, as stated in Srimad Bhagavatam. नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु. आप तो बोलते हैं रोज, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्वत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी. अब इसका मतलब भी आप देखें. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is practically destroyed, and loving service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. In this way, simply by hearing of the powerful activities of the Lord, the devotee's heart becomes almost completely cleansed of material contamination. And thus his original position as an eternal servant who is part and parcel of the Lord becomes manifest. While the devotee engages in devotional service, the passionate and ignorant modes of material nature are gradually vanquished. देखिए, आप इसको ध्यान से सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुने आप. When you engage in the devotional service, automatically mode of ignorance and mode of passion अपने आप चला जाता है. आपको अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं कि नहीं अब मेरा मन इधर क्यों भाग रहा है, अब मैं माइंड को वापस खींच के लाऊंगा. वो मेंटल जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है. You just have to engage in devotional service. अभी आप भगवान के प्रोग्राम में आगे, कथा में बैठने के लिए आगे, बस कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा, अपने आप मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस शांत हो जाएगा. जैसे अब दवाई लेते हैं, दवाई तो अपना असर करेगी, तो ये दवाई है. मेडिसिन आप लेंगे, आप ना चाहें तो भी असर करेगी. आप जहर अगर खा लेते हैं, जहर अपना काम करेगा. आप बोलो जहर खा लिया, लेकिन अब चाहे मर्जी से खाया चाहे जबरदस्ती खाया, अब जहर तो अपना काम करेगा. राइट? जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं, चाहे प्यार से लगाए जबरदस्ती लगवाए, वो दवाई अपना काम करेगी. ऐसे ही हरे कृष्णा भगवान की भक्ति डिवोशनल सर्विस अपना काम करेगी, है ना. किसी तरीके से बस उसमें एंगेज होना. While the devotee engages in devotional service, the passionate and ignorant modes of material nature are gradually vanquished, and then he acts only in the mode of goodness. At that time, he becomes happy and gradually advances in Krishna consciousness. All the great acharyas strongly recommend that people be given a chance to hear about the Supreme Lord, then success is assured. The more we cleanse the dirt of material attachment from our hearts, the more we will be attracted by Krishna's name, form, qualities, paraphernalia, and activities. This is the sum and substance of the Krishna consciousness movement. Srila Bhaktivedanta purports की. चलिए मंगलाचरण करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवं च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष, भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकम्, सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे, श्रीकृष्ण शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं, भक्ति वेदांत मार्गपन्थनं, सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नं, सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, भगवान से प्रार्थना है, मे द सुप्रीम लॉर्ड प्लीज डेकोरेट माय टंग, मे the right word are spoken at the right time, may we are all truly able to glorify the supreme personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. So this chapter is titled Prayers by the Residents of Jambudvip. तो अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार निधि माता जी बोल रहे थे कि हमारा ज्योग्राफी का सेशन हो गया है। नाइस। तो आप सबको स्क्रीन दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी स्क्रीन देखने में। तो यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट से फिर से, ठीक है, जिसको याद है ठीक है। तो ये हमारा, आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा यूनिवर्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, जो एक भगवान को क्या कहते हैं, त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, तीन लोक कहा जाता है। तो तीन कैसे हो गए, एक तो हमारा लोअर प्लैनेटरी सिस्टम हो गया, एक ऊपर का हो गया, और एक जो बीच वाला हमारा जो भूलोक हो गया। तो ये तीन प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे बताए जाते हैं। अभी इसमें 14 हमारे वो बताए गए हैं, 14 लोक हैं, 14 लोक हैं। 14 में 7 नीचे हैं, आप देख रहे हैं, भूलोक के नीचे 7 हैं, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल और अतल, ये 7 हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं 28 हेलिश वर्ल्ड भी आपको दिख रहे हैं, जो हेलिश प्लैनेट है, 28 टाइप के नरक हैं। अभी ये जो 7 जो नीचे के लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, इनको बिल स्वर्ग कहा जाता है। 3 तरह के स्वर्ग हैं, एक तो ऊपर स्वर्ग है ही जहां पे इंद्र है, एक लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में ये 7 स्वर्ग के बराबर माने जाते हैं, और यहाँ पे जितना ओपुलेंस है उतना ऊपर भी नहीं है, बट यू डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि वहां से फिर हेलिश प्लैनेट बहुत नजदीक है। वहां से सीधा फ्लाइट हेलिश प्लैनेट के लिए जाती है। फिर 28 तरह के नरक हैं, अभी उसका भी आगे आएगा, तो उसके बारे में तब होल्ड होल्ड करते हैं तब तक। अच्छा, नीचे ये गर्भोदक ओशन है, जहां पे भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु। अच्छा, शुरू शुरू में अगर आपने सेशन अटेंड किए हो, तो हमने 3rd कैंटो में, 2nd कैंटो में हमने जब क्रिएशन के बारे में पढ़ा था, तो भगवान संकर्षण के एक्सपेंशन से एक्सपेंशन होता है, महाविष्णु होते हैं। महाविष्णु के बॉडी की पोर्स में से एक एक यूनिवर्स निकलते रहते हैं, उनके शरीर में से, पोर्स में से बहुत सारे यूनिवर्स निकलते रहते हैं। और जब वो यूनिवर्स निकलता है, फिर भगवान उसमें खुद एंटर कर जाते हैं एक्सपेंड करके। तो सबसे पहले जो एंटर करते हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु को कहा जाता है। तो ये वो गर्भोदक्षाय विष्णु, इनके जो लोटस नेवल से, इनकी नाभि से जो कमल निकलता है, तो आप देख रहे हैं नाभि से कमल निकला है और ऊपर तक जा रहा है, उसके टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, ठीक है। तो ये लोअर प्लैनेटरी सिस्टम हो गए। उसके बाद बीच में हमारा भूलोक आ गया। जब भूलोक के ऊपर हमारे जो है फिर स्वर्गलोक आपको दिख रहा है, लेफ्ट में आप देखिए स्वर्गलोक है इधर, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस तरीके से 7 ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, अब आप उस वाले पे आ जाइए, दूसरे वाले इस पे आ जाइए, ठीक है। अब हम
हमारा फोकस भूलोक है। और भूलोक में क्या हमने बताया था, महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ को ले गए, उन्होंने भूलोक के चक्कर लगाए और रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीप बन गए जो जमीन बची, और 7 द्वीप में उनके 7 बेटे को उन्होंने वहां का राज्यभार सौंप दिया। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वहां पे भी जीवन है और वहां पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये 7 द्वीप हैं, आप देख रहे हो। बच्चों को हमने पिछली बार बताया था, बच्चों को सब याद हो गया था किस किस तरह का ओशन है, कैसा है। तो आप देख रहे हैं, तो इसको इसको कहते हैं कमल जैसा है, जैसे कमल की पंखड़ी होती है ऐसा है। और कमल के बीच में जो वो रहता है गोल वाला, उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। तो हम सब लोग जम्बू द्वीप पे रह रहे हैं। ठीक है, तो 7 द्वीप में से आप देख रहे हैं। फिर मतलब ये नाम आप कुशा द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, तो ऐसे हमारे 7 द्वीप चले जाते हैं। जम्बू प्रभु जी पूरी लाइक ये हमारी जो भी पूरी अर्थ है ये उसमें आती है जम्बू द्वीप में। भूलोक जो है माता जी, एक्चुअली अभी जो करंट, अगर आप जो हमारे को ज्योग्राफी का जो सर्कल दिखाया जाता है वो है, या प्लेन में आप जाते हैं, प्लेन में आपको मैप दिखता है, उसका इससे उसका कंपैरिजन नहीं है इसमें। तो उसको अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे, इफ वी ट्राई टू विजुअलाइज कि हाँ मैंने वो देखा है, तो वो इसमें कहाँ फिट होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इन लोगों को पता ही नहीं है, मैं क्षमा करें, भगवान के सामने बैठ के बोल रहे हैं, दे डोंट नो दैट लाइफ एग्जिस्ट। अभी भी ये लोग स्पेशीज की खोज कर रहे हैं कि कोई एक्सटिंक्ट स्पेशी मिल गई, एक नए प्रकार की मछली मिल गई, एक नए प्रकार का कीड़ा मिल गया, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, भागवत में ऑलरेडी बता दिया है, 8.484 लाख तरह के हैं। अभी तक इनको 84 लाख का, इनको 1000 भी नहीं मिले हैं, 200-400 ही मिले हैं। और उसमें भी फिर एक खोजता है, दूसरा उसको नोबेल प्राइज दे देता है ना। तो ऐसे चल रहा है उसमें सेटअप। तो दे डोंट नो, है ना। बट हाँ, आप उससे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन वैलिड, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। जो प्लेन में जो हमें मैप दिखाया जाता है, या जो ग्लोब हमें हमारे कई बार ऑफिस में टेबल्स में रखा जाता है, वो इसमें नहीं फिट होगा, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रभु जी, ये तो फ्लैट अर्थ वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना। हाँ, राइट, ओके। अब आप आइए, अब ये दूसरा व्यू है, बीच में अब ये जम्बू द्वीप है। और फिर आप देख सकते हैं ये सी सॉल्ट है। हमने पिछली बार बच्चों ने बताया था कि आप बाहर जाते हैं तो समुद्र का पानी नमकीन रहता है, राइट, यू कैन टेस्ट इट। तो इस तरीके से 7 द्वीप हो गए, और बीच में हमारा ये वो है। वहां पे थोड़ा सा ये भूमंडल, अभी हमारा भूमंडल पे हम लोग रुके हैं, अभी हम अपने वाले उस पे नहीं आए जहाँ पे हम लोग हैं, जम्बू द्वीप में भी नहीं आए। वी आर इन द जम्बू द्वीप विच इज इन द मिडल। मिडिल को, बीच वाले को जम्बू द्वीप जैसे कहते हैं। उसके चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है। अब आप इसकी देख सकते हैं, इसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो जम्बू द्वीप की ब्रेड्थ है 100,000 योजन। एक योजन में 8 मील होते हैं, 8 माइल्स, राइट। सो 800,000 माइल्स ब्रेड से, आप समझ रहे हो मतलब, ऐसे ब्रेड उसके चारों तरफ है, तो उसका आप मान लीजिए कि क्या बोलेंगे, डायमीटर, यस, है ना, डायमीटर मतलब। छो प्रभु, इसको आप टच करो, इस वाले को, हाँ, ऐसे ऐसे, ये बीच, ये हाँ, नहीं, आप इस पे सी सॉल्ट पे आप उंगली ऐसे चलाओ, पूरा सी सॉल्ट नहीं ऐसे ऐसे गोलना नहीं, उसको बीच में से ऐसे लाइन करो, बस सीधी ऐसे, नहीं नहीं, बस सी सॉल्ट कितना चौड़ा है, सी सॉल्ट कितना चौड़ा है बस। हाँ, तो सी सॉल्ट आप देख रहे हैं, ये इतना सी सॉल्ट है, सराउंडेड बाय सी सॉल्ट। और आप जम्बू द्वीप पे आप पूरी ऐसी लाइन घुमाएं बीच में से, हाँ, ये पूरा, तो 800,000 माइल्स, ऐसे आप देख लें, ये उसकी ब्रेड्थ है, इस तरीके से, ब्रेड्थ इन यूजन्स, इस तरीके से। और जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं, उन द्वीप्स की ब्रेड्थ और भी ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आप आ जाइए, अब हम जम्बू द्वीप पे आ जाते हैं। अब जो जम्बू द्वीप है, उसके बीच में हमने पिछली बार देखा था, ये गोल्डन का, सोने का ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। और जम्बू द्वीप के 9 भाग हैं, 9 खंड हैं। अब आप देख लीजिए, तो जम्बू द्वीप में आप सबसे पहले, क्या आपको मेरा माउस दिख रहा है? ओह यस, गुड गुड गुड। सो दिस इज भारतवर्ष, हम लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं। ये जो नीचे का स्पेस है वो, ये जो नीचे का स्पेस है, ये है भारतवर्ष, बस ये भारतवर्ष है।
अब इसी में ये हमारे जो भी सब द्वीप वगैरह सब आ जाते हैं। इस पूरे भारतवर्ष के राजा हमारे भरत महाराज थे, जिनके नाम पे इसका नाम भारतवर्ष रखा गया है। ये पूरी पृथ्वी जो अभी है, जो हम लोग जिसको पृथ्वी कहते हैं या हम लोग को जो मानते हैं, पता नहीं इनको पूरे भारतवर्ष का भी पता भी है नहीं पता है उसमें कितना है, बट ये हमारा भारतवर्ष है। अभी उसके उधर वाला किसी को नहीं पता है। अभी अब करंट उसमें ये मत बोलिए कि मैं हिमालय के उस पार जाऊंगा तो मैं किंग पुरुष वर्ष में चला गया, ऐसा भी मत बोलिएगा। अब लॉजिकली अभी आप सोचेंगे अरे हिमालय तो ये रहा, उत्तराखंड में गए, हिमालय के पार हो गए हम लोग, अब हिमालय के हम परली तरफ जाते हैं तो उसकी तरफ वो हो गया, तो हम तो किंग पुरुष वर्ष में चले गए। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। आप इसको करंट जो इन्होंने मैप बनाया उसके कंपैरिजन में ना जाए। इनको पता नहीं हिमालय कहाँ तक फैला है क्या है, क्योंकि व्हाट वी सी, पिछली बार मैंने आपको बताया था, आवर सेंसेस आर लिमिटेड। हम अपनी इंद्रियों से जितना देखते हैं, आपको जो दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा। आपको जो दिखेगा आप बोलोगे नहीं बस इतना ही है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं तो इससे भी ज्यादा है, राइट। तो हम लोगों का इंद्रियां बिकॉज डिफेक्टेड, तो वी कैन नॉट डू दैट, राइट। तो जब भगवान हमें बताना चाहेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा। सोई जान ही जेहि दे ही जना, बस। भगवान जिसको जताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, वो उसको जान जाता है। ओके, तो ये भारतवर्ष है। तो ये 9 भागों में जम्बू द्वीप को बांटा गया है और भारतवर्ष है। फिर उसके ऊपर ये किंग पुरुष वर्ष हो गया, फिर उसके आगे ये हरिवर्ष नहीं, हाँ ये हरिवर्ष हो गया, है ना। ये किंग पुरुष वर्ष, ये हरिवर्ष, और उधर भद्रश्रवा वर्ष है, फिर इलावृत वर्ष, फिर केतुमाल वर्ष, और फिर ये रमेक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, और उत्तर कुरु वर्ष। तो ये इस तरीके से ये 9 भागों में इसको बांटा गया है जम्बू द्वीप को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पिछली बार हमने इलावृत वर्ष के बारे में चर्चा की थी। इलावृत वर्ष में कौन है, हु इज द प्रिसाइडिंग डीटी। दो चीजें फिर से समझें, एक तो प्रिसाइडिंग डीटी है और एक मेन पर्सनैलिटी है उस खंड में जिनको सब फॉलो करते हैं, ऐसे समझिए। तो मेन वहां पर्सनैलिटी कौन है और प्रिसाइडिंग डीटी कौन है, इलावृत वर्ष में हमने पिछली बार चर्चा की थी। उसमें आते हैं then, हाँ जी, और जो अपने 9 होते हैं हम बोलते हैं सूर्यदेव, हाँ जी, हाँ जी, चंद्रदेव, हाँ जी, ये अलग अलग डायरेक्शन। हाँ जी। और बताएं, और सोचे कुछ। इलावृत वर्ष हमने पिछली बार चर्चा की थी। किसने बोला, शिव जी? यस यस, भगवान शिव। आपने बताया था पिछली बार, वहां पे कोई जाएगा तो स्त्री बन जाते हैं। यस, तो इलावृत वर्ष में मेन पर्सनैलिटीज भगवान शिव, और भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? फिर से और सोचिए, और सोचिए। जो अपने सिर पे पृथ्वी को धारण करते हैं, शेषनाग, संकर्षण, संकर्षण, भगवान संकर्षण। तो उसमें वो ऐसे शिवजी भगवान संकर्षण को ग्लोरीफाई कर रहे थे। पिछली बार जो हमने वर्ष पे चर्चा की थी उसमें वो यही कह रहे थे कि भगवान शिव कह रहे हैं भगवान संकर्षण से, कि लोग कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनहाइलेशन, ये सब करते हैं आप। उन्होंने कहा लेकिन भगवान आपके सिर पे तो सरसों के दाने के जैसे इतने सारे यूनिवर्स है, इतने सारे ब्रह्मांडों को आपने धारण किया हुआ है, आपको तो पता भी नहीं कोई उस पे भूलोक नामक या ये यूनिवर्स नामक कुछ है भी। यू आर होल्डिंग सो मेनी, तो ये आपकी ग्रेटनेस है। तो इस तरीके से भगवान शिव भगवान संकर्षण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो इलावृत वर्ष में, और वहां पे जैसा माता जी ने बताया, वहां पे सिर्फ एक पुरुष भगवान शिव ही है, बाकी सब स्त्री हैं वहां पर। और कोई गलती से वहां चला भी जाता है पुरुष तो वो स्त्री बन जाता है। उसकी कथा आएगी कैंटो 9 में, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इलावृत वर्ष हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, पिछली बार हमने जो चर्चा की थी, गंगा गंगा जी का हमने जो था वो देखा था। तो गंगा जी का प्रवाह आपको याद है, गंगा जी कैसे, एक तो सबसे पहले कैसे, जब भगवान वामन ने अपना जो पैर, दूसरा जो पैर, एक एक पग में उन्होंने पूरा भूमंडल था उसको नाप दिया, और दूसरे में जब उन्होंने आकाश में अपना पैर उठाया तो उनके पैर से क्या हो गया, वो पंक्चर हो गई। तो मैं आपको दिखा देता हूं।
ये जो लेयर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द, ये जो लेयर है, ये जो आप मेरा माउस देख रहे हैं, ये लेयर है, ये लेयर भगवान के उससे टोनेल से टच हो गई, और जैसे ही भगवान का टोनेल से टच हुई वो पंक्चर हो गई। और जो कारणोदकशाई, जो कारणोदक है, कारणोदकशाई मतलब जहां पे से भगवान महाविष्णु जहां पे शयन करते हैं, वहां से कारण पोषण से वो थोड़ा से पानी की बूंद गिरी, और जैसे उन्होंने भगवान वामन के टोनेल को टच किया, तो जैसे केसर से लग गया उसको, और उसका रंग एकदम से बताते हैं लाल हो गया, और वो पानी फिर कहाँ पे आया उसके बाद, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। उसके बाद फिर वहां से कहाँ गए गंगा जी, आप देख रहे हैं कॉजल ओशियन, वहां से आया। उसके बाद ध्रुव लोक में, वेरी नाइस, यस गुड, राइट। सत्य लोक में कौन है, ब्रह्मा जी। अब वहां पे गंगा जी को कहा, गंगा जी का नाम क्या है वहां पर, विष्णुपति है। गंगा जी का नाम, पहले सबसे पहले गंगा जी आई तो उनका नाम हो गया भगवतपति, क्योंकि भगवान के पैर से आए। फिर ध्रुव लोक में फिर उनको विष्णुपति के नाम से कहने लगे, तो है तो क्योंकि भगवान के टोनल से टच हुई। आपने वो आरती सुनी होगी जो आरती हम लोग गाते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। देखिए कितना उसमें गंगा जी का सारा बता दिया है। चरण छवि श्री बनवारी की, जो भगवान बनवारी के चरण की छवि जिनको कहा जाता है, और वहां से प्रगट भई गंगा, सकलमल हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, और हरे अघ कीच। इसका मतलब क्या है, हर लेती हैं, अघ मतलब जो हमारे अपराध हैं, जो हमारे सिंस हैं, कीच मतलब करोड़ों अपराधों को हर लेती है। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। तो ये गंगा जी की महिमा। तो गंगा जी फिर कहाँ आई, सत्यलोक से, फिर ध्रुवलोक, ध्रुवलोक से फिर चंद्रलोक, और फिर चंद्रलोक से टॉप ऑफ द माउंट मेरू, जो सुमेरु पर्वत के टॉप पे आती हैं। और वहां से गंगा जी के चार वो भाग हो जाते हैं। तो चार कौन कौन से थे नाम उनके, ये देखिए, चक्षु, नॉर्थ में जा रही है भद्रा, वेस्ट में जा रहे हैं चक्षु, ईस्ट में जा नाम हुआ उनका सीता, और दक्षिण में क्या हुई, अलकनंदा। तो हम लोग सब भारत में अलकनंदा के नाम से उनको जानते हैं। तो जो नीचे आ गई तो उनका नाम अलकनंदा हो गया। तो ये अब आपने देख लिया। तो ऐसे इस तरीके से चारों उसमें दिशाओं में चली जाती। अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देख रहे हैं सारे, इसको चलता तो 11वें वर्ष का हो गया। अभी क्या है, अभी आज का चैप्टर टाइटल है, तो अभी गंगा जी के बारे में बता दिया। अब वो बता रहे हैं प्रेयर्स बाय द रेजिडेंट्स ऑफ जम्बूद्वीप, वो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक उसमें एक मैंने आपको क्या बताया, एक प्रिंसिपल पर्सनैलिटी है और एक प्रिसाइडिंग डीटी है, ठीक है। 11वें वर्ष का हमने कर लिया। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, भद्र श्रवा वंश, भद्र श्रवा वर्ष। यहाँ पे आप मेरा माउस दिख रहा है आपको, तो भद्र श्रवा वर्ष में अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भद्र श्रवा वर्ष में वहां पे जो भद्र श्रवा नाम के ही वहां पे जो पर्सनालिटी हैं, वो धर्मराज के पुत्र हैं, और वो पूजा किसकी कर रहे हैं, हयग्रीव भगवान का वहां अवतार इनकारनेशन का क्या नाम है, हयग्रीव। हयग्रीव कौन नहीं जानता है, गुड।
तो है का मतलब होता है हॉर्स, और ग्रीव का मतलब होता है गर्दन। तो जिनकी गर्दन घोड़े जैसी है वो भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। तो हैग्रीव अवतार के बारे में आपको बताता हूँ। दो तीन कथाएं हैं, काफी अलग अलग, मतलब एक देवी भागवत में कथा आती है, एक पुराणों में एक कथा आती है। तो कहते हैं एक बार ये मधु कैटभ नाम के दो दैत्य थे, आपने सुना होगा, मधु कैटभ दो मारे। तो हुआ क्या कि ये दोनों जो दैत्य थे, बताते हैं ये वेदों को लेकर के ब्रह्मा जी से, उन्होंने जब कल्प के अंत में हुआ तो ये वेद ब्रह्मा जी से चुरा करके लेके चले गए, पाताल लोक में चले गए। और जब पाताल लोक में चले गए तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान जी फिर गए तो भगवान ने, कहते हैं, हैग्रीव रूप धारण किया। ठीक है। और उस रूप में भगवान ने फिर इन दोनों से युद्ध किया और इनको मार दिया, और इनको मार करके भगवान वेदों को ले आते हैं। तो एक तो ये कथा हुई। दूसरी कथा हम बताते हैं, देवी भागवत में जो कथा आती है वो बताते हैं कि एक दैत्य था, देयर वाज अ डीमन, और उसने बहुत तपस्या की, और बहुत तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। और वरदान ये मांगा कि दैत्य मतलब ये है ग्रीव ही था, उसने वरदान ये मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, मैं मरूं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे सिर्फ है ग्रीव ही मारेगा। उसने ये सोचा कि जैसे हिरण्यकशिपु ने, अभी आपने नरसिंह भगवान की मूवी देखी है, कि जितने कॉम्बिनेशन के उसने वरदान थे सब मांग लिए। तो उसने कहा कि है ग्रीव शेप का और कौन होगा, मैं ही अकेला हूं, तो मुझे मारे तो सिर्फ है ग्रीव ही मारेगा और कोई मुझे नहीं मार सकता। अब उसने ये वरदान मांग लिया। अब ये वरदान मांग लिया तो वो वेद लेके चला जाता है, वेद उसने चुरा लिए ब्रह्मा जी से। अब तो फिर ये देवता गए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान को कहा कि भगवान आप लेकर के आइए। तो कहते हैं भगवान गए, हयग्रीव से भगवान ने बहुत युद्ध किया, और युद्ध करते करते वो हयग्रीव को नहीं हरा सके, और भगवान थक गए। लीला है भगवान क्या थकेंगे। भगवान थक गए, भगवान थक के आके लेट गए और विश्राम करने लगे। और विश्राम करने लगे, भगवान की आंख लग गई, और वो सो रहे थे अपने धनुष पे, अपने धनुष पे आके सो गए। तो देवताओं को डर लगा कि अब कैसे भगवान को जगाए, तो कौन जगाए। तो उन्होंने फिर कुछ इंसेक्ट थे उनको भेजा, उन्होंने उनको भेजा, उनको कहा कि जो धनुष की जो टंकार है, ये जो इसका जो रस्सी है, इसको आप काट दो, इसको आप कुतर दोगे तो भगवान की आंख खुल जाएगी। अजीब लीला हुई। अब जैसे ही उसने रस्सी काटी, वो रस्सी इतनी टाइट थी, कहते हैं जैसे वो रस्सी टाइट भगवान की गर्दन पे लगी तो भगवान का मस्तक कट गया उससे। अभी मस्तक कट गया, सब देवता घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर काट के उनको लगा दिया। तो ऐसे भगवान का है ग्रीव अवतार हुआ। और फिर भगवान गए, भगवान ने उससे, राक्षस से युद्ध किया, और भगवान ने उसको मार दिया, है ग्रीव को, जो दानव था उसको मार दिया। और फिर भगवान सारे वेद ले आते हैं, और सारे वेद ला के भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। तो ऐसे भगवान का है ग्रीव अवतार हुआ। अब भगवान ये सारी सब नॉलेज लेकर के आए हैं। तो कहते हैं ये जो भद्रश्रवा वर्ष में, भद्रश्रवा जो वहां के राजा है, या जो वहां के जो भक्त हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था 9 वर्षों में से ओनली भारत वर्ष जो है कर्म भूमि है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत भारत एव कर्म क्षेत्रम, अन्यो अन्य अष्ट। सिर्फ भारत ही एक कर्म क्षेत्र है, बाकी जो अन्य 8 वर्ष हैं उनको कहा गया है भौमा, स्वर्ग। उनको भूमि पे स्वर्ग कहा गया है। तो उसके बारे में बताया गया है कि जब जो हेवंस में जाते हैं, जो स्वर्ग में जाते हैं जीव, और उनका स्वर्ग में जब उनके वो भोग पूरे नहीं हो पाते, तो वो यहाँ पे आके इन बाकी 9-8 वर्ष में दे आर गिवन अ प्लेस टू स्टे देयर। वहां पे वो अपने भोग पूरे करते हैं। वहां पे हर एक रेजिडेंट की उम्र 10,000 साल है। 10,000 years इज द एज ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी देयर। और 10,000 हाथियों का उनमें बल है, एक एक प्राणी में 10,000 हाथी का बल। वहां पे सारे सिम्टम लगभग
त्रेता युग जैसे हैं। त्रेता युग में आयु 10,000 साल होती है। तो जैसे त्रेता युग में लक्षण होते हैं, आप ये मानिए इन 8 वर्षों में, इन 8 खंड में त्रेता युग जैसा माहौल रहता है। दे एंजॉय लाइफ वेरी मच, राइट। लेकिन वहां पे भी भगवान की भक्ति करने का प्रयोजन है। लेकिन मेन जो है उनका वो भोग भूमि है। डिफरेंस ये है, राइट। और ये कर्म भूमि है, भारतवर्ष। कर्म भूमि में ही आप अपने अच्छे कर्म, जो बुरे कर्म है या सुकर्म है, उनको आप दोनों को कैंसिल करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी आगे आएगा। अब ये सारे देवता ऊपर से देखते हैं कि ये जो भारतवर्ष में रहने वाले जीव हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि ये सब भगवान की भक्ति करने का इनको मौका मिल रहा है। ये सब बैठ के हरि कथा सुन रहे हैं। अभी देवता ऊपर से देख रहे हैं। ये नारद जी बता रहे हैं कि दे ऑल वंडर। सो सिर्फ भारत भूमि में यहीं से ही आप यू कैन गो बैक टू गॉड हेड। भगवान के धाम सिर्फ भारत भूमि से ही जा सकते हैं। आपकी फ्लाइट टू गोलोक यहीं से टेक ऑफ करेगी। ना आप नीचे के किसी लोक से जा सकते हैं, ना आप ऊपर के किसी लोक से जा सकते हैं, ना आप किसी दूसरे पार्ट से जा सकते हैं। ओनली भारत भूमि में ही आपको अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप भगवान की भक्ति भजन करके जा सकते हैं। क्योंकि इनका भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भगवान भगवत गीता में ये कह रहे हैं, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं इनको फिर यहीं आना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो बाकी 8 वर्ष में बता रहा था। तो भद्रश्रवा उसमें क्षेत्र में खंड में राजा जो भद्रश्रवा है, वो भगवान की हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करते करते वो भगवान को यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने ही सारे धर्मों की स्थापना की है। क्योंकि वो धर्मराज के पुत्र हैं और भगवान हयग्रीव सारे वेदों को लेकर के आए थे। तो इससे मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ, वेरी सटल आप समझने की कोशिश करें कि हर एक प्राणी, हर एक जीवात्मा का एक अलग अलग मूड होता है। भगवान कपिल देव माता देवभूति से कह रहे हैं, स्वभाव गुण मार्गे न भक्ति योगो विभिद्यते। हर एक का स्वभाव है, आप में हर एक का स्वभाव अलग अलग है। हर एक के अपने स्वभाव और गुण के हिसाब से भक्ति योगो विभिद्यते। भक्ति योग आपका भिन्न भिन्न होगा। जैसा आप कर सकते हैं भजन, आपका कुछ और मूड होगा, मेरा कुछ और मूड होगा। हम सबका अलग अलग मूड है। So we don't need to copy each other. We don't need to pretend to be each other. We just need to serve the Supreme Lord. That has to be the only mode. तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम बाकी 8 वर्षों की चर्चा करेंगे। तो आप बोलोगे प्रभु जी, एक जगह नरसिंह भगवान की पूजा हो रही है, एक जगह भगवान हयग्रीव की पूजा हो रही है। हमने तो सुना ही नहीं आज तक हयग्रीव। एक जगह कच्छप भगवान की पूजा भी हो रही है। आपने कभी देखा किसी के ऑल्टर में यहाँ कच्छप भगवान को रखा है? सीधे सीधे रामकृष्ण को रख लेते हैं हम लोग। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो इससे अलग अलग मूड है। तो फिर बैक टू जहाँ उसमें भद्रश्रवा क्षेत्र में भद्रश्रवा भगवान हयग्रीव की उपासना करते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपने ही सब धर्मों की स्थापना की है और धर्माय आत्म विशोधनाय, जो आत्मा का विशोध, जो सर्जरी आप कह सकते हैं, उसको शोध करना, रिसर्च करना है, इसको क्लींस करना, आपने सब धर्मों की स्थापना की है। और आत्मा को जो क्लींजिंग है भगवान, वो आप ही करते हैं। आपके जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके लोग अपना वो कर पाते हैं समहाउ। बट फिर भी वो कहते हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए स्तुति करने का एक तरीका है। इस तरीके से अपना मन कहा जाता है। कई बार तुम लोग बोलते हो ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। लेकिन एक मूड होता है भगवान से बात करना। तो वो बात कर रहे हैं भगवान से, बात करके कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने एक ऐसा विश्व बनाया है, अहो विचित्रम। यहाँ पे ऐसा एक विचित्र माहौल बन गया है भगवान के पिता या पुत्र, पुत्र अपने पिता की बॉडी को अग्नि देके आ रहा है, उसका वो दाह संस्कार कर रहा है। और उसके बाद लेकिन उसकी भी आशा है कि मैं लंबा जीऊंगा। और कई जगह पिता पुत्र का दाह संस्कार कर रहा है और फिर पिता पुत्र की संपत्ति को एंजॉय करता है। मतलब आप देखिए,
इसको अगर आप मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा माइंड को पॉज करके हम देखें, कितना कितना विचित्र है। ये जो हमारे संबंध है, हम सब इनको मान लेते हैं कि दे आर परमानेंट, राइट। इतना उसमें वो हो जाते हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। इतना प्रमत्त हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं, हम देख रहे हैं वो जा रहा है, मेरे से पीछे वाला चला गया है, लेकिन मैं उसको देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं। मुझे लग रहा है शायद मैं यहां रहने वाला हूं। और हद तो यहां तक होगी, कह रहे कि हे भगवान, कई बार तो पिता पुत्र की को अग्नि देता है और फिर पिता और पुत्र की संपत्ति को एंजॉय करता है। कई जगह तो ऐसा होता है कि फिर वो उसकी उसकी बीवी को मतलब ही टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ। कई जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लोगों ने सेक्ट बनाए हैं, वहां पे ऐसी परंपरा है। मतलब व्हाट इज द एंड? तो वो कह रहे कितना विचित्रम है, कितना विस्मय करने वाली बात है। और कहते हैं भगवान ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं जो जिनको ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी भी वदन्ति विश्वम कवय स्मनश्वरम पश्यन्ति आत्मा। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जो बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहते हैं ये संसार नश्वर है, मतलब ये सब खत्म है, ये सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो आत्म मतलब जिन्होंने अध्यात्मविदो, जो अध्यात्म को जानते हैं, वो देख भी लेते हैं। हम लोग तो जानने मारने के लिए कई बार कहीं आप कभी किसी का फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं तो वहां पे क्या बातें होती है? सब बेकार है, सब बेकार है, सब देखो क्या जीवन है, सब कुछ चला गया, चला गया। देखो अब यही था, कल मेरे से बात कर रहा था, वो कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा, अरे मेरे दोस्त कहाँ है तू, जैसे उससे बात कर रहे हैं राइट। वहां से बाहर निकलते ही, ओए वो ऑर्डर का क्या हुआ, कब आ रहा है, ऐसे थोड़ी काम चलता है। सब सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उसी में लग जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो अनपढ़ है उनकी बात तो है ही है, लेकिन कई बार जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, अध्यात्म विदो विपश्चित है, पश्यन्ति अध्यात्म विदो विपश्चित है, तथापि मुह्यन्ति तवाज माया। इवन देन, हे मेरे भगवान, ओ माई अनबॉर्न, अज अज मतलब जो अनबॉर्न है, जिनका जन्म नहीं हुआ है, हे भगवान आपकी माया से वो इतने मोहित हो जाते हैं। तो आज माया सुविस्मितम, राइट, कृत्यम, आपके जो कृत्य हैं भगवान इतने विस्मित करने वाले नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री, सुविस्मितम। तो उनका क्या कहा जाए। और भगवान फिर वो लास्ट में कंक्लूड करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ये भगवान ने पता नहीं क्यों बना दिया ये सब, भगवान तो सफरिंग देने के लिए बना रहे हैं, उसको भी वो खंडन करते हैं। उसमें फिर अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, भले ही ये सब बन रहा है लेकिन आपका इसमें कोई वो नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल अटैच टू दिस। भगवान इससे अटैच नहीं है, क्योंकि आपने ये बनाया है क्योंकि जीवात्मा को एंजॉय करना है, because they want to enjoy, they want this kind of atmosphere, that is why you have created it through your energy। लेकिन आपका भगवान इसमें कोई नहीं है। तो हे भगवान, मैं जो भगवान है ग्रीव है, जो धर्म के प्रिंसिपल को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे भद्रश्रवा वर्ष में महाराज भद्रश्रवा उनकी वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हरिवर्ष में। हरिवर्ष कहाँ है आपको दिख रहा है? निषाद और हेमकुंड पर्वत के बीच में ये हरिवर्ष है, ठीक है। तो हरिवर्ष में अब वो बताते हैं कि हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। और वहां पे बाकी और लोग कौन है? डेमन्स हैं, जो एग्जॉल्टेड डेमन्स हैं वो भी उनके साथ है वहां पर। कई बार अज्ञात सुकृति भी तो हो जाती है। अज्ञात सुकृति आप समझते हैं ना, कई बार आप बोलते हैं अरे ये तो सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा चोर है, ये इतना रिच क्यों है, इसके पास इतनी संपत्ति क्यों है, व्हाई इज ही फ्लोरिशिंग? उसने कोई अज्ञात सुकृति की हो। अज्ञात मतलब अनजाने में भी आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं, किसी को आपने जाने अनजाने पानी पिला दिया, भूखे को आपने भोजन करा दिया, तो अज्ञात सुकृति हो जाती है, अननोइंगली यू परफॉर्म गुड एक्टिविटी। तो वहां पे प्रहलाद महाराज अपने
जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की उपासना कर रहे हैं। और बाय द वे ऐसा ना सोचे कि सारे जो डेमन्स हैं वो गलत होते हैं। बलि महाराज, आप देखें बलि महाराज इतने एग्जॉल्टेड, अभी आगे कथा आएगी उनकी 9th कैंटो जब हम पढ़ेंगे तो बलि महाराज भगवान उनके द्वारपाल बने हैं। कौन से पता, कौन से उसमें नीचे, कौन से लोग में वो उसमें है रसातल में। अच्छा तो तो बलि बलि महाराज की कथा आएगी और बलि महाराज को भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है। और प्रहलाद महाराज कहाँ पैदा हुए हैं? प्रहलाद महाराज हिरण्याक्ष के बेटे हैं, तो क्या वो राक्षस हैं? नहीं, इवन तो ही इज बॉर्न, वो भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप अपने किसी भक्त के सर्वेंट के पास रख दो। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। क्यों? उग्रो अस्मि, उग्र जातोस्मि, मैं उग्र जाति में पैदा हुआ। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पुट मी क्लोज टू वन ऑफ योर सर्वेंट्स। तो प्रहलाद महाराज हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज अपने फॉलोअर्स के साथ नरसिंह भगवान की हमेशा उपासना कर रहे हैं। और ये जो हमने आज का वर्ष जो लिया है वो प्रहलाद महाराज ने ही बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, भगवान से आप बात कीजिए। जैसे भद्रश्रवा महाराज अपने मन की बात कह रहे हैं कि हे भगवान देखो ऐसा सब हो रहा है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज भगवान से बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, ये जो आपने सब बनाया, सबसे पहले तो कहते हैं हे भगवान आप हमारे निकट आइए, निकट आइए। फिर भगवान निकट आकर के आप मेरे हार्ट में आइए, मेरे हार्ट में आइए, मेरे हार्ट में जितनी बुराई है उनको आप खत्म कर दीजिए। फिर भगवान आप मुझे अभयम अभयम भूयिष्ठ, हे भगवान प्लीज मेक मी फियरलेस, प्लीज मेक मी फियरलेस, राइट। मुझे आप सारे जो मेरे डर है खत्म, क्योंकि डर लगा रहता है ना हम लोगों को, पता नहीं क्या होगा, है? कैसे कल की गाड़ी चलेगी, वहां जाऊंगा वो डांट देगा, कल को जॉब पे झगड़ा हो जाएगा, कल को पड़ोसी परेशान कर देगा, कल को वो कर देगा। क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, बिकॉज यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे की परेशानी का कारण बन रहे हैं, राइट। जो अपने रिश्ते हैं वही हमारे लिए एक दूसरे की परेशानी बन जाती है, तो फियर लगा रहता है। तो वही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान प्लीज मेक मी फियरलेस। और फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से, हे भगवान आप हमें फियरलेस कर दीजिए और आप ऐसा कीजिए कि मुझे भक्तों का संग मिल जाए। अगर मेरी अटैचमेंट हो, मेरी अटैचमेंट ये परिवार में, घर में, घर रूपी जेल में, वो जेल कह रहे हैं कि इसमें मेरी अटैचमेंट ना हो, आप मुझे फ्री कर दीजिए यहाँ से। और अगर मेरी अटैचमेंट हो, संगो यदि शात भगवत प्रियेषु न, अगर संग मेरा हो किसी के साथ तो जो भगवान के प्रिय हो वो, या भगवान जिनको प्रिय हो वो, भगवान मेरा आप उनके साथ संग कर दीजिए। अब भगवान मानो पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो? तो तब वो कह रहे हैं यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम, निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुसम स्पर्शताम हि मानसम, हरति जो अंत श्रुतिभिर्गतोंगजम, गतोंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। See, you are all repeating so nicely. तो यही प्रहलाद महाराज की प्रार्थना नहीं, हम सबकी भी यही प्रार्थना है, हम भी भगवान से यही कह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं, हे भगवान यत संग लब्धम, मैं इसलिए भक्तों का संग मान रहा हूं क्योंकि उनका संग होने से, यत संग लब्धम, उनका संग मिलने से क्या होगा? हे भगवान मैं आपकी कथाएं सुनूंगा, आपका वीर्य, आपका वैभव, राइट। मैं आपकी जब वो आपको बड़ी बड़ी आपकी कथाएं सुनूंगा, उस कथा को सुनने से क्या होगा? श्रुति भी गतो, आप मेरे कानों के थ्रू मेरे हृदय में आप प्रवेश कर जाओगे। और जब आप मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओगे तो उससे फिर क्या होगा? मानसम, मेरा जो मन है, मेरा मन क्लीन हो जाएगा। हालांकि बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, गंगा जी में स्नान करने से, मानो भगवान कहें कि तुम गंगा में स्नान कर लो, प्रहलाद भक्तों का संग क्यों मांग रहे हो? नहीं नहीं भगवान, अगर मैं गंगा में स्नान करूंगा, गंगा के स्नान करने से जो मेरे जो शारीरिक है अंगजम, जो बॉडीली जो इन्फेक्शंस है वो मेरा सफाई होगी,
अगर मन साफ होगा तो मुंह बहुत देर के बाद होगा, बार बार गंगा जी में स्नान करने से होगा। लेकिन हार्ट जो है, हार्ट तो एकदम से आपकी कथा आएगी और मेरे हार्ट में चली जाएगी, राइट, और फिर मेरा मन साफ हो जाएगा, एंड देन आई विल बी कनेक्टेड विद यू। तो इसीलिए भगवान मुझे भक्तों का संग दे दीजिए, भक्तों का संग होगा तो मैं बहुत जल्दी आपको पा जाऊंगा। और फिर उसके बाद आगे वो कहते हैं कि जिनको, मान लो भक्तों का संग ही क्यों मांग रहे हो, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, जो भक्त होते हैं, राइट, समा सते तत्र सर्वै गुणै सुरा, वहां पे हे भगवान, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान के प्रति, अभी भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, जिसकी भगवान के प्रति भक्ति भगवान अकिंचना, कोई डिजायर नहीं है, अहेतु की जो भक्ति होती है, हे भगवान जिनकी भक्ति आपके प्रति ऐसी होती है, समासते तत्र, वहां पे सारे देवताओं वाले गुण आ जाते हैं। अपने आप उनके अंदर जो प्योरिटी है, क्लीनलीनेस है, और जो सो कॉल्ड जो जितने भी गुण हैं, सब गुण भगवान उनके अंदर आ जाते हैं। दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द मोड ऑफ गुडनेस। वेयरएज जहां पे हरौ अभक्तस्य कुतम महत् गुण, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, वहां पे महान उनके अंदर गुण नहीं हो सकते भगवान, इसलिए आप मुझे भक्तों का संग दे। देखो कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। इस तरीके की प्रार्थना होनी चाहिए। और हम लोगों को संग मिलते हुए भी, मैं आपको भी बताया कि एक वो माता जी का फोन आया तो वो यही कह रही थी कि जो दूर होता है उसी को पता लगता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। हम लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है रेडीमेड, सो वी डोंट अप्रिशिएट दैट। तो वही भरत प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान मुझे आप भक्तों का संग दे दीजिए। और फिर फाइनली कहते हैं सबको, सब जो उनके फ्रेंड्स थे उनको कहते हैं ईर्ष्या, मान, मद, मोह, अहंकार, इच्छा सब कुछ छोड़ करके चलो हम मिलके नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज इनकी उपासना कर रहे हैं, नरसिंह भगवान की उपासना। उसके बाद हम चलते हैं केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। अच्छा, केतुमाल वर्ष में कौन रहते हैं? कहते हैं केतुमाल वर्ष में भगवान जो प्रिसाइडिंग जो रीति है वो है कामदेव, और उनकी उपासना कर रहे हैं माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी वहां पे भगवान की उपासना करते हैं, जो भगवान ने वहां पे कामदेव के रूप में अब किसी का मूड है, मैं फिर से वही आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, एज पर योर मूड, राइट, एज पर योर मूड, राइट, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे ही आपको मूर्त दिखेगी, वैसे आपका अरेंजमेंट भी हो जाएगा। जिस भाव से आप भगवान को देखना चाहते हैं आपकी वो है। तो वहां पे माता लक्ष्मी कहते हैं, माता लक्ष्मी भगवान कामदेव की उपासना कर रही है, और माता लक्ष्मी भगवान कामदेव को ग्लोरीफाई करती हैं, और उनको ग्लोरीफाई करते हुए कहती हैं माता लक्ष्मी के हे भगवान, यू आर द रियल हस्बैंड। अब वो कहते हैं कुछ डिवोटी या कुछ, वो अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कोई स्त्री आपकी भक्ति करती है बिना किसी डिजायर के, तो यू फुलफिल ऑल हर डिजायर्स, यू प्रोवाइड एवरीथिंग टू देम। लेकिन अगर कोई आपकी उपासना करते हैं कुछ डिजायर के साथ, आप वो डिजायर पूरी कर देते हो और उसके बाद उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ एक डिजायर होती है, मटेरियल डिजायर मांग करके वो आराधना करते हैं, और मटेरियल डिजायर मिल गई, मटेरियल डिजायर के बाद चीजें पूरी थोड़ी होती। भाई स्त्री है, स्त्री यही तो मांगेगी, भाई कोई हस्बैंड हो, राइट, कोई परिवार हो, बट अल्टीमेटली सम देयर विल बी डिपेंडेंस ऑन समवन, राइट। किसी को वो अपना केयर टेकर मान लेंगी, जो भी मान लेंगे कि भगवान मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए, या ऐसा पति दे दीजिए, या ऐसा मुझे अपना कुछ, मुझे कुछ बना दीजिए। अल्टीमेटली डिपेंडेंस किसी ऐसा मांग रही है ना कि जिस पे वो फुल्ली रिलाई हो सके, राइट। यही तो उद्देश्य है अल्टीमेटली। तो यही कह रहे हैं कि भगवान वो डिजायर पूरी तो आप कर दोगे, क्योंकि पूरी, मान लो भगवान कुछ ऐसा क्यों कह रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि भगवान बिकॉज यू आर द रियल हस्बैंड, यू आर द रियल पति। पति का मतलब क्या होता है? लॉर्ड। यहाँ हमारे वाला ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड वाला पति, पति नहीं, वो पति परमेश्वर, वो वो माने ना माने खुद बन के बैठ जाते हैं कि मैं ही पति परमेश्वर हूं तुम्हारा। हम अपने आप को खुद ही वो डेजिग्नेशन दे भी देते हैं, राइट।
वी बिकम लाइक दैट। तो माता लक्ष्मी यही कह रही कि भगवान यू आर द रियल हस्बैंड। अगर वो आपकी पूजा करेंगी तो उनकी सारी डिजायर फुलफिल हो जाएगी। यू गिव देम एवरीथिंग। और फिर कहती है कि हे भगवान, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आप श्रीवत्स हो। आपको श्रीवत्स की कथा पता है? अच्छा, श्रीवत्स के बारे में किसको नहीं पता? गुड, ओके। समय क्या होगा प्रभु? बोर तो नहीं हो रहे? टाइम 5 मिनट आगे 7:40। ओह 7:40 हो गया। अच्छा, हम सभी स्त्रियां ही हैं। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि जो आत्मा है वो बेसिकली स्त्रीलिंग है, और परमात्मा जो है वो हम सभी स्त्रियां ही हैं। आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है। वेरी नाइस। प्रसादम के टाइम पे बात करते हैं प्रभु के बारे में। आप अपने आप को स्त्री मानिए और जो माता जी कहें उसको फॉलो कीजिए। ठीक है? ठीक है? नहीं सॉरी, गुड पॉइंट प्रभु। नहीं, ये जो वैसे तो यही है कि देखिए पर्पस क्या है, फिर से वही बात आती है कि हम जो जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है, तो ही इज द रियल हस्बैंड, ही इज द रियल प्रोटेक्टर। तो वी ऑल शुड बी सर्विंग हिम इन वट एवर मूड। अब आप स्त्री मान के सर्व करें, आप पशु मान के सर्व करें, आप बच्चा मान के, इन वट एवर मोड यू वांट टू सर्व, बट वी आर ऑल सोल्स। जैसा महाराज ने कहा, गुरु महाराज, यस वी आर ऑल सोल्स। जीवात्मा है और जीवात्मा परमात्मा है। ठीक है? ही इज द एंजॉयर, वी आर टू बी एंजॉयड, राइट? सो विद द मूड ऑफ सर्विस, विद द मूड ऑफ सर्विस हम भगवान की सेवा करते हैं। दैट इज द मूड। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था आपको? श्रीवत्स। तो भाई वो क्या कि एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। ये तो कथा तो आपने सुनी होगी, जो भृगु ने का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, का विष्णु को घट गयो जो विष्णु जो जो भृगु ने मारी लात। ये कथा किसने नहीं सुनी है? सबको पता है? अच्छा, फिर करते हैं। टाइम का किसी को रश तो नहीं है? कहीं तो नहीं जाने का कोई वो तो नहीं? तो हुआ क्या, एक बार ना बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए और उनमें ये हुआ कि भाई अब हम किसको अपना हेड मान करके, या किसको हम श्रेष्ठ मान करके, कौन श्रेष्ठ है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, ये बात की चर्चा हो रही थी। अब चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, किसी ने कहा शिव जी श्रेष्ठ हैं। मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी से नारद जी का संवाद हुआ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हालांकि नारद जी खुद भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये सब एक्टिंग करते हैं कि हमें नहीं पता है। नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं यू आर द क्रिएटर, आप ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको देखा आप भी किसी की पूजा कर रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? वो कौन है? तो ऐसे ही ये सब इकट्ठे हुए ऋषि मुनि, बट दिस इज फॉर अस। ये सब परमहंस हैं। परमहंस मतलब जो हाईली एग्जॉल्टेड। तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, शिव जी श्रेष्ठ हैं, कौन श्रेष्ठ है? विष्णु श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि उन सब ने भृगु ऋषि को कहा, भृगु ऋषि उसमें बड़े थे, कि आप पता लगा के आइए। तो भृगु ऋषि चले गए। तो भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए भृगु ऋषि, तो ब्रह्मा जी बैठे थे और भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब भृगु ऋषि ने गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा देखो मेरा बेटा आया है, पुत्र आया है, और ब्रह्मा जी ने एक्सपेक्ट किया कि ये आके मुझे दंडवत करेगा, लेकिन भृगु ऋषि ने दंडवत नहीं किया। अब उसने दंडवत नहीं किया तो भृगु ऋषि भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का मन पढ़ लिया कि अच्छा प्रणाम दंडवत किए, मुझसे आशा कर रहे हो, तो फिर तुम भगवान नहीं हो सकते। तो वहां से चले गए। फिर उसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए। अब भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव तो खड़े हो गए एकदम से, अरे मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। शिव भागे कि इसको गले लगा लूं, और जैसे वो गले लगाना आए भृगु ऋषि ने कहा, "तू रो, क्या तू नहाया भी नहीं इतने दिनों से, अपने ऊपर तूने क्या ये धूल मिट्टी लगाई है, अनटचेबल।" शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी भगवान ने कहा क्या बोल रहा है? मैं तो, शिव जी भगवान ने कहा, उन्होंने उठाया अपना त्रिशूल। अब जैसे शिव जी भगवान ने त्रिशूल उठाया, माता पार्वती ने पकड़ा, अरे स्वामी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो
तो उन्होंने कहा आपका भाई है, आपका भाई है, गलती हो जाती है, आप इसका बुरा मत मानो, इसको जाने दो। तो फिर भृगु जी वहां से चले गए और भृगु जी ने कहा कि ये भी भगवान नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनको क्रोध आ गया। अब भृगु जी गए फिर भगवान महाविष्णु के पास। अब भृगु जी भगवान महाविष्णु के पास गए और महाविष्णु जी योग निद्रा में थे, सो रहे थे। आ गए भृगु जी, भृगु जी ने गए, भृगु जी जाते कहा मारी उसकी छाती पे एक लात मारी भगवान महाविष्णु, क्या हो आलसी कहीं के, हमेशा पड़े रहते हो, सोते रहते हो, कुछ काम दाम तुमको है नहीं। अब भगवान की छाती पे लात मारी, इतनी जोर से लात मारी उनके यहाँ पे निशान पड़ गए। निशान, कोई बात नहीं, निशान पड़ गया उनकी छाती पे। आलसी कहीं के, सोते रहते हो हमेशा, कुछ काम धाम है नहीं, यहाँ बैठे बैठे क्या योग निद्रा में जा रहे हो। और इस तरीके से उसने बोला। अब तो भगवान विष्णु जैसे उठे, एकदम से उठे हुए थे वो, तो उनको पता था आ रहा है, भृगु जी आ रहे हैं ऑलरेडी। तो भगवान विष्णु खड़े हुए और उन्होंने फटाक से भृगु जी की लात पकड़ ली और कहा ऋषि आपको चोट तो नहीं लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, मुझे खड़े होकर आपको वेलकम करना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। अब तो भृगु जी पानी पानी हो गए और भृगु जी भागे वहां से, भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और फिर उन्होंने कहा कि यही असली भगवान है। लेकिन अब बात कहाँ आ गई, श्रीवत्सी की बात आ गई। अच्छा, श्रीवत्स का मतलब क्या है कि जो श्री के प्रिय है, बिलवड ऑफ श्री। श्री और वत्स ये दो शब्द से श्रीवत्स बना है। जो श्री, श्री जी कौन है, लक्ष्मी जी। श्री जी हमारे राधा जी को भी कहते हैं, बट लक्ष्मी जी उन्हीं का एक्सपेंशन है ना। तो अब लक्ष्मी जी के जो प्रिय हैं वो, अब कहते हैं भगवान को जब लात लगी तो फिर माता लक्ष्मी तो भगवान के पैर दबाती हैं। तो फिर ये हुआ, भगवान उनको लगा कि चोट तो नहीं लगी भगवान को, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे हृदय में तो तुम रहती हो हमेशा, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, तो मुझे कैसे चोट लग सकती है इस तरीके से। तो फिर उस दिन से वो जो निशान पड़ा भगवान की छाती पे, उसको श्रीवत्स कहने लगे कि क्योंकि हार्ट में भगवान के लक्ष्मी जी हैं। और फिर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे हार्ट में ही रहती हो, व्हेन यू आर हियर देन मुझे कैसे प्रॉब्लम पेन हो सकती है। कुछ कहना चाहे माता जी? ये भी है कि लक्ष्मी रुष्ट भी हो गई थी भगवान से। हम्म। हृदय में मेरा, आपके हृदय में मेरा वास है, और ब्रह्मा ने मुझे, मतलब क्योंकि जो ऋषि आए हैं वो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो अब मैं आज के बाद ब्राह्मणों को कभी नहीं मिलूं। Yes. तो इसीलिए लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को इसलिए ब्राह्मणों को एक्चुअली वहां पे भी श्राप मिला था, अगर आपको ध्यान हो। जब भगवान शिव का उन्होंने अपमान किया था, तो वहां पे भी इनको, जो भगवान शिव के जो गए थे गान, उन्होंने इनको सब ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि तुम सब भूखे मरोगे और मांग मांग कर खाओगे, क्योंकि भगवान शिव का अपमान हो रहा है और तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यू केप्ट क्वाइट। भृगु जी की दाढ़ी नोची गई थी वहां पर। लेकिन इसमें भी भगवान ने अपने भक्तों पे ऐसी कृपा की, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन जो मेरे भक्त होंगे, जो मुझे बुलाएंगे, वहां तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं लक्ष्मी माता भगवान के बिना रह नहीं सकती, तो उनको आना ही पड़ा। अभी वो वही बात करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से, वो प्रार्थना कर रही हैं केतुमाल वर्ष में, तो लक्ष्मी जी भगवान से कह रही कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि श्रीवत्स आपके, मैं आपके चेस्ट पे, मैं आपके हृदय में वास करती हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। जैसे आप अपने भक्तों के सिर पे हाथ रखते हैं, ऐसे अपना जो आपका जो कराम्बुज है, जो आपका कमल हस्त है, वो मेरे आप सिर पे रख दीजिए। ये जो लोग कहते हैं कि मेरा निवास आपके चेस्ट में मेरा निवास है, ये तो आपकी लीला है, मैं इसको समझू ना समझू, लेकिन अल्टीमेटली आप मुझे मैं अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए। और फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे भगवान, बड़े बड़े देवता, इंद्र, ब्रह्म, वो मेरी उपासना करते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मिलती हूँ। Even though they worship me, I still don't become available to them, या वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे भगवान पूछे, मान लो तुम्हें कौन प्राप्त कर पाते हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे भगवान, जिनके हृदय में विंदति अहम त्वत् हृदय यतो अजित, जिनके हृदय में
भगवान अजित आपका वास है, या जिनके हृदय को भगवान अजित ने जीत लिया है, हे भगवान जिनके हृदय में आप रहते हो, विंदती अहम, मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होती हूँ, मैं उन्हीं के ऊपर कृपा करती हूँ, उन्हीं को मैं प्राप्त होती हूँ जो आपका भजन करते हैं। तो इसलिए भगवान आप अपना कमल हस्त मेरे शीर्ष पे रख दीजिए। तो ये यहाँ पे माता लक्ष्मी इस तरीके से भगवान का वो कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं रम्यक वर्ष में। तो रम्यक वर्ष आप देख रहे हैं, तो अब रम्यक वर्ष में भगवान की जो उपासना कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं वैवत्स मनु। ओके, वैवत्स मनु कौन है? करंट मनु कौन सा मनवंतर है अभी? ये सेवंथ मनवंतर। हु इज द मनु? वैवत्स मनु ही अभी हमारे, अभी कोई पूछे अब के मनु महाराज कहाँ रह रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मनु महाराज रम्यक वर्ष में रह रहे हैं। तो ये जो मनु महाराज है वहां पर, तो वहां पे मेन पर्सनैलिटी कौन है? मनु महाराज। और मनु महाराज जो प्रिसाइडिंग डीटी है वहां पे, भगवान का जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य रूप है, तो मनु महाराज हमेशा भगवान की मत्स्य रूप में, जो मत्स्य अवतार की आराधना करते रहते हैं। अच्छा, ये उनका कनेक्शन क्या है? ये जो मनु महाराज हैं, ये जो पिछले जो मनवंतर था, चक्षुषा मनवंतर, जो 6 मनवंतर था, उसमें ये राजा थे। इनका नाम था सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत है। तो राजा सत्यव्रत को भगवान ने मत्स्य अवतार दिखाया था। ये आपने कहानी सुनी मत्स्य अवतार वाली? किसने नहीं सुनी? ओके, ठीक, करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो महाराज सत्यव्रत एक बार पानी लेने गए, मतलब उस पे वो रिवर में गए वहां पर, तो वहां पे एक छोटी सी मछली थी और मछली उनसे बात करने लगी। और मछली ने कहा कि हे राजन, मुझे डर लग रहा है और मैं प्यासी हूं और मुझे आप अपने संरक्षण में रख लीजिए, प्रोटेक्ट मी, गिव मी योर प्रोटेक्शन। तो महाराज सत्यव्रत उसको अपने महल में ले आए और महल में एक उन्होंने उसको जार में रख दिया। अब जार में रख दिया उसको, तो थोड़ी देर बाद फिर महाराज को आवाज आई, उसने वो मछली उनको बुला रही थी, महाराज आइए, महाराज आइए। और महाराज ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये जार मेरे लिए छोटा हो गया है, मुझे किसी बड़े जार में रख दीजिए। अब वो वाकई में मछली बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने एक बड़ा कंटेनर मंगाया। बड़े कंटेनर में रख के जैसे ही गए, फिर मछली की आवाज आई, हे राजन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ? फिर देखा, फिर उसका आकार बढ़ गया। इस तरीके से उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, और अब जो महाराज सत्यव्रत थे वो तो दंडवत कर गए वहां पर। उन्होंने कहा आप कौन है? यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो फिर वो भगवान ने फिर उनको बताया कि मैं मत्स्य अवतार लूंगा। और उन्होंने कहा राजन मुझे आप समुद्र में ले चलो, समुद्र में मुझे छोड़ दो। और उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद अभी प्रलय आने वाली है, राइट? जब एक मनवंतर चेंज होता है, तो एक से दूसरे मनवंतर में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं, कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। यस माता, राइट। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, मनवंतर आप कह सकते हो। तो वो छठा मनवंतर खत्म होने वाला था। और एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? 71 साइकिल्स ऑफ चतुर्युग। 71 साइकिल्स ऑफ चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग कितना हुआ? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। और ऐसे 71 मिलियंस ऑफ इयर्स। तो जब मनवंतर चेंज होता है, उसमें एक प्रलय आती है उस टाइम में। तो उन्होंने कहा, भगवान ने उसको कहा कि प्रलय आएगी और उस टाइम में बहुत पानी में ज्वार भाटा आएगा, या जैसे सुनामी टाइप कुछ आएगा। और उन्होंने कहा कि सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन हे राजन तुम एक बोट में आके बैठ जाना, और अपने साथ में, तुम्हारे साथ जितने भी ये जो सप्त ऋषि हैं और जो नॉलेज थे, जो स्क्रिप्चर्स थी, उन सबको लेके तुम बोट में आके बैठ जाना, और फिर मैं जो है उस बोट को मैं हैंडल करूंगा। तो वासुकी नाग आए, वो रस्सी बन गए, और भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और कहते हैं उस प्रलय के जल में मत्स्य भगवान वासुकी नाग से बोट को पकड़ करके, और भगवान उस जल में विहार कर रहे थे, राइट? तो रम्यक वृक्ष में वैवत्स मनु यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने उस प्रलय के जल में आके मेरी रक्षा की, और तब दुनिया तो उथल पुथल हो रही थी,
उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े इंद्र हैं, राइट, वो दे कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर, दे आर एनवियस ऑफ ईच अदर। कहते हैं मत्सर ज्वर, जो एनवी का वर्ड मालूम है? एनवी को हिंदी में बोलते हैं मात्सर्य। तो ये मात्सर्य कहां से आया है? मछली से आया है। और क्या होता है इसमें? पानी में, समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस डर से कि कल को ये मछली बड़ी होकर मुझे मारे, इससे पहले मैं इसको मार देता हूं। तो दैट इज व्हाई इसका जो ट्रू मतलब है, मात्सर्य शब्द वहीं से आया है, इसको एनवी कहा जाता है। और आप संसार में देखते हैं कितनी एनवी है, हर एक को ये डर रहता है कि पता नहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको अड़ंगी मार के गिरा दूं, इसको रोक लूं, ऐसा रोक लूं। तो सेम कॉन्सेप्ट में मात्सर्य। तो वही कह रहे हैं भगवान वैवत्स मनु कि हे भगवान, मत्सर ज्वर मतलब एनवीएस का जो बुखार है इस समाज में लोगों को है, और बड़े बड़े देवता, क्योंकि वो प्रलय की बात कर रहे हैं। अब जो प्रलय आई, उस प्रलय में क्योंकि हर एक मनवंतर चेंज होता है तो उसमें इंद्र भी चेंज हो जाता है। हर एक मनवंतर के 5 अंग होते हैं, राइट, 5 अंगों में से एक अंग इंद्र भी है, तो इंद्र भी चेंज होगा। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर इफ इंद्र वाज सो पावरफुल देन ही कुड हैव प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ, लेकिन वो भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, आप ही ने मुझको प्रोटेक्ट किया। आप ही वासुकी नाग को वो रस्सी बना करके आप तो उस जल में विहार कर रहे थे, विहार मतलब स्विमिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वेयर एवरीवेयर चारों तरफ प्रलय आ गई थी, सब लोग डूब रहे थे, बट आप ही थे। तो भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो रम्यक वर्ष में ऐसे वैवत्स मनु, जो भी करंट मनवंतर में मनु है, राइट, वो है। तो वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बस 2 और बचे हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं। फिर तीसरा, फिर उसके बाद हिरण्मय वर्ष में। अच्छा, हिरण्मय वर्ष में जो की पर्सनैलिटी है वो है अर्यम, और वो किसकी उपासना कर रहे हैं? वो भगवान कच्छप की प्रार्थना कर रहे हैं। ही इज ग्लोरीफाइंग भगवान कच्छप। अब आप सब जानते हैं कच्छप अवतार भगवान ने कब लिया था? कब लिया था भगवान ने कच्छप अवतार? समुद्र मंथन के टाइम लिया था। तो वो भगवान की उपासना कर रहे हैं कि हे भगवान, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जो अंडे से निकलते हैं, जो बीज से निकलते हैं, राइट, और जो स्वेट से निकलते हैं, या जो गर्भ से पैदा हो जाए, अंडज स्वेदज, राइट, पसीने से भी। आपने सुना होगा हनुमान जी के पुत्र हुए, हनुमान जी पसीने से हुए ना, राइट। तो ये 4 तरीके के प्राणी, उन्होंने कहा भगवान जितने भी तरह के निकलते हैं, यू आर द मेन पर्सन। हालांकि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। वंस अगेन वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं भगवान, दिस होल क्रिएशन हैज मैनिफेस्टेड फ्रॉम यू, यू आर द कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारण। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में है, भगवान गोविंद की जो वो आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका विग्रह सच्चिदानंद है और आप ही सब कारणों के कारण हो। तो वही यहाँ पे अरेमा कह रहे हैं भगवान कच्छप से कि यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, बट यू आर स्टिल अवे फ्रॉम इट। आप क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप इस संसार में कोई काम करते हैं, इफ यू बिकम द कॉज ऑफ समथिंग, ऑफ एनी रिजल्ट, कैन यू स्टे अवे फ्रॉम द इफेक्ट? कॉज एंड इफेक्ट नहीं, राइट। आप उस इफेक्ट से जुड़ ही जाते हो किसी तरीके से, राइट। हाउएवर यू ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट, बट यू आर एंटेंगल्ड इनटू दैट। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान, जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट एंड जो आयरन है, आयरन इज जड़, आयरन इज इमूवेबल, ऑन इट्स ओन आयरन डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी। लेकिन जैसे ही मैग्नेट उसके सामने रखते हैं तो मैग्नेट आयरन को मूव कर देती है इधर उधर। तो यही कह रहे हैं कि हे भगवान, यू आर लाइक दैट मैग्नेट, even though you are the cause but you are still out of it, you are within but you are still out of it, right? So then again he says, हे कच्छप भगवान, मैं आपकी उपासना करता हूं। फिर लास्ट में आता है उत्तर कुरु वर्ष। उत्तर कुरु वर्ष में जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो कौन है? भगवान वराह। वराह भगवान ने, आप सब जानते हैं वराह भगवान ने अवतार कब लिया था, क्यों लिया था? मदर अर्थ को जब कौन ले गया था गर्भ में? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जब मदर अर्थ को नीचे उसमें जो
जो नीचे मतलब ही टुक इट इनटू द पाताल, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में ले गए थे वो उसको, राइट। और जब वो वहां से ले गए तो भगवान ने फिर वराह अवतार लिया और भगवान माता पृथ्वी को अपने जो दांत थे उस पर उठा करके लाए थे। तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग डीटीज वराह भगवान और प्रिंसिपल पर्सनैलिटीज मदर अर्थ, भूमि देवी। अब आप बोलोगे हम तो भूमि पे रह रहे हैं, तो वहां पे नहीं, नहीं, भगवान की माया है, भगवान की लीला है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ भूमि देवी, personification of भूमि देवी, she is there and she is constantly glorifying वराह भगवान। अब वो कह रहे हैं कि हे भगवान, you are the only protector, right? Once again the mood is complete surrender, पूरा शरणागति के भाव से भगवान की आराधना की जा रही है। और भगवान करेंगे, हे भगवान आदि सुकराय नमः, you are the original, right? जो सुकर भगवान का अवतार है, यू आर द ओरिजिनल वन, मैं आपको प्रणाम करते हैं, राइट। तो अब आप सब समझ गए, हर एक वर्ष में अलग अलग मूड में, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, देयर दे हैव अ प्रिसाइडिंग डीटी और वो उसकी आराधना कर रहे हैं, राइट। तो जिसका जैसा भाव है उस भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं, राइट। भगवान manifest himself and then we can glorify. So like this, so this is the description of, this is the prayers offered by the residents of जम्बूद्वीप। Now अब इसमें जम्बूद्वीप में 2 और वर्ष बच गए। हमने अभी भारतवर्ष की चर्चा नहीं की और किम पुरुष वर्ष की चर्चा नहीं की, बाकी 7 हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। So now you are all following the whole thing, आपने सारा फ्लो आपको समझ में आ गया। तो किम पुरुष वर्ष में कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान राम की हमेशा स्तुति कर रहे हैं। तो प्रिसाइडिंग डीटी हुए भगवान राम और प्रिंसिपल पर्सनालिटी इज हनुमान जी। और भारतवर्ष में तो है ही अब हम सारे राइट। तो दैट दिस विल डिस्कस इन द फ्यूचर चैप्टर्स। तो अगले चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेयर्स बाय द रेजिडेंट ऑफ किम पुरुष वर्ष एंड भारतवर्ष, वो भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। वी विल स्टॉप हियर नाउ। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, ओके। रवि प्रभु, नरेंद्र त्रिपाठी प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टॉप हियर नाउ एंड वी विल, और फिर आपसे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समुद्र मंथन ये